solum means floor or ground. As per Buckmans and Brady, soil is a dynamic natural body on the surface of earth in which plants grow, composed of mineral and organic materials and living form. And this is the definition of Joffe and Marbert. Already I have given to you. Soil is a natural body developed by natural forces acting on natural material. It is usually differentiated into horizon from mineral and organic constituent of variable depth, which differ from the parent material. Below in morphology, physical properties and constituents, chemical properties and composition and biological characteristics. So this is the definition given by the Joffe and Marbert. And this is the latest definition given by the Valutham Bhattacharya 2000. आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Soil is a dynamic natural body developed as a result of pedogenic process through weathering of rocks consisting of mineral and organic constituents possessing definite chemical, physical and mineralogical and biological properties, having a variable depth over the surface of the earth and providing a medium for plant growth. This is the complete definition. As per how the soil is originated, it is developed by the pedogenic process, different pedogenic process and factor affecting on the soil. So after weathering of rocks, parent material will form, and that parent material, soil forming process and factors are involved, and they form, ultimately they develop the soil profile and form the soil. Okay? Yes, sir. This is the figure of the soil profile. If you cut the soil vertically, means the vertical section of the soil shown different horizontal layer into it. तो जो अगर हम soil को different ये vertically cut करते हैं, तो इसमें different layers हमको दिखती हैं. These layers are called as horizons. O horizon, A horizon, like that. आगे, and in this, only human being, not rat, nodules, mite, nematode, protozoa, fungi, bacteria, all these things are present into the soil. Means flora and fauna, all these things are micro and microorganisms. In this, the surface horizon, A horizon, top, then you can say subsoil, C and parent material is there. This is the composition of soil, component of the soil, you can say 45% mineral matter, 5% organic matter, 25% air and 25% water. Okay, and this air and water is interchangeable. Okay, your soil is a living form. Okay, soil is living form, and it compare with our living bodies, like digestive system of the soil can be compared by the human being. Like our digestive system, the soil have organic matter decomposition. Means organic matter decomposition is compared with the digestive system of our body. Respiratory system are compared with the circulation, air circulation and exchange of gases. Means air circulation and exchange of gases are the respiratory system of our soil. Water movement within the soil, it is the circulatory system of the blood. Water movement within the soil. Excretory system, leaching of excess salt. By जो भी salt, whichever is applied on the soil, they leach down into the down strata, lower strata. So leaching out the excess salt is compared with the excretory system of our body. Soil clay is the brain of the soil. Soil clay is the brain of the soil, and soil color is the color and depth is the height of the soil. Okay, in the modern concept, I have already told that the person which is use the soil in their own way, and they can define the soil their own way. Okay, so
characteristics of soil. Soil is a natural body that is natural medium for plant growth and cannot be synthesized artificially. It cannot be made artificially. Okay, differentiated into different horizon, the presence of different layers due to the movement, translocation and accumulation of the material, and morphological, chemical and biological differences due to the varying parent material and climatic condition. जो रॉक की वेदरिंग के बाद जो ब्रेकडाउन होता है उससे उसके बाद पेरेंट मटेरियल जो मिलता है, ऑन दैट पेरेंट मटेरियल different climatic changes and soil forming process are involved, and they form some typical type of soil in the nature, or some special type of soil in the nature on the basis of their process. These are some branches of soil science. Soil genesis, in which we study the origin and genesis of the soil. Soil survey, in this we study this is the branch of soil science in which we study the soil survey and classification. Soil taxonomy. Soil taxonomy is the classification of soil in modern way, like plant kingdom, animal kingdom. You have classified all the lineage is given this plant kingdom and animal kingdom. Likewise, soil taxonomy is also a modern system of soil classification. On the basis of that, we can classify the word soil into different ways. अभी हम जैसे आप सॉइल्स ऑफ यूपी की बात करते हैं, सॉइल्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो जो सॉइल्स ऑफ इंडिया या सॉइल्स ऑफ यूपी में जो सॉइल मिल रही है, वो सॉइल सपोज अमेरिका में मिल रही है, तो उसको अगर हम जैसे यहाँ पर आप कहते हो ना कि ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, या कह लो कि एलुवियल सॉइल, तो अगर एलुवियल सॉइल आप कनाडा में जाके कहोगे या अमेरिका में जाके कहोगे एलुवियल सॉइल, तो दे कैन नॉट मैच, उनको पता नहीं चलेगा कि ये क्या कह रहे हैं. ठीक है, तो एलुवियल सॉइल को वो नहीं जानते. लेकिन ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हो जो कि वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट हो. ओके, वर्ल्ड वाइड जब अडॉप्ट होगा क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो वो क्लासिफिकेशन सिस्टम ही जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट हो रहा है. तो दिस ऑल दिस थिंग यू स्टडी इनटू द soil taxonomy. Soil physics, this is the branch of soil science in which we study the physical properties, how these physical properties affect on the soil health, crop production, all these things. Soil chemistry is a branch of soil science in which the chemical properties and chemical reaction changes into the soil. Soil mineralogy is a branch of soil science in which we study the minerals into the soil. Soil microbiology, microorganisms. Soil technology, in which we study the technological tools used into the soil. Undulated land, ravine land, all these land are reclaimed and get plain and they use for the cultivation purpose. So soil technology, where we use technology, that is the soil technology. Soil morphology means what is the physical upper portion or what is the lower boundary, what is the depth of the soil. All these things we study the morphology, means skeleton of the soil. Soil fertility, कल हमने soil fertility and productivity के बारे में थोड़ा सा बताया था. I think आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. Soil fertility क्या है? It is the status of the plant, status of the nutrient which supply the nutrient to the plant in adequate amount and balanced form. मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, वो सब अवेलेबल हो जाए पौधे में और वो बैलेंस फॉर्म में हों. तो these are these things we study in the soil fertility. Pedology is the derived from the Greek word pedon plus logos, means soil or earth. The science which deals with the genesis, classification and survey of the soil. Genesis, classification and survey. In this we study the soil genesis, classification and survey, and law of geographical distribution of the soil as a natural body. So pedology is the study of soil as a natural body and does not focus on primarily use of the soil, immediate practical use of the soil. Means हमने एक चीज बताया था, it is not really directly related to the farmers. Pedology is not directly related to the farmers. Pedophology is the branch of soil science which deals with the Greek word
logos means soil or ground. The science that deals with the influence of soil on living things, particularly plant, including man-use, land, and farm plant growth. Means edaphology is the study of soil from crop production point of view. Means it is directly related to the farmers or directly related to the growers. Okay. So these are two main branches of soil science, that is pedology and edaphology. Okay. Yes. Okay. These are earth crust क्या है? Earth is made from the three concentric ring: core, mantle, and crust. Inner core, outer core, and core. Inner core, outer core, and middle core. And mantle and crust. And soil is just above this crust. A very thin layer. Soil is present into the upper portion of the crust in a very thin layer. Means its upper boundary is atmosphere and lower boundary is lithosphere. Okay. And the interior of earth is crust, mantle, and core. सर हाँ आनंद। हेलो। जैसे जैसे हम कोर की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारी डेंसिटी, सॉइल की डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है और प्रेशर भी बढ़ता जाता है। डेंसिटी बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। इसको चाहे तो आप वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट कर लेना उसको। हम हाँ बोलो। ये 10 मिनट में मीटिंग ऑफ हो जाएगी। नहीं तो कर लेंगे, फिर रिज्वाइन कर लेंगे, अभी तो टाइम है ना। हाँ। कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, बता देंगे जैसा होगा। आप लोग तो 9:30 तक हो ना? 9:30 तक हो? यस सर। आपकी 10 बजे से क्लास है? यस सर। कोई बात। यस सर। तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट कर लेना आप लोग, ठीक है? यस सर। Mantle, core, mantle and crust. Mantle is the solid portion, semi-solid portion, and core is the innermost layer. Density आप देखिए जरा, डेंसिटी की तरफ अगर ध्यान दीजिए तो डेंसिटी क्रस्ट की डेंसिटी अब कितना है? 2.6 to 3.3 तक है, ठीक है? 2.6 to 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहीं पर अगर आप क्रस्ट की बात, मेंटल की बात करेंगे 3 to 4.5 और कोर की 9 to 12। मींस जैसे जैसे आप कोर की तरफ बढ़ते जाते हैं, सेंटर की तरफ बढ़ते जाते हैं, डेंसिटी इसकी बढ़ती जाती है और इसकी टेम्परेचर भी इसका बढ़ता जाता है। और ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। और हमने दो चीज बताया था, कौन कौन सा बताया था जिसके कारण ये ज्यादा होता है टेम्परेचर? क्यों भाई? टेम्परेचर के कारण दो मेटल बताए थे हम, निकल एंड आयरन। And now the exterior of Earth, the solid portion is the lithosphere, liquid portion is hydrosphere, and gaseous portion is the atmosphere. The atmosphere is about 320 kilometers above the lithosphere. Hydrosphere about 70% of the Earth's surface covered by the hydrosphere. So in this lithosphere, hydrosphere and atmosphere, और इन सबको मिला के ये होता है बायोस्फीयर। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम डिस्कस कर लेंगे आगे चल के। गेन ऑफ वाटर कहाँ से हो रहा है? वाटर जो कहाँ से आ रहा है? कंडेंसेशन के थ्रू वो रिसीव हो रहा है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू रिसीव हो रहा है। और वो इसको आप हमें ध्यान दिलाइएगा तो इसको हम क्लास में अच्छे से समझा देंगे, ठीक है बेटा? तो रिसीव हो रहा है ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, देखिए वाटर रिसीव हो रहा है। वाटर रिसीव होने के बाद ये इंटर करता है रन ऑफ के थ्रू और इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू, पर्कुलेशन के थ्रू ग्राउंड वाटर में जाता है। और ग्राउंड वाटर में जाने के बाद फिर यही जो है विद द टेम्परेचर ओशन से एवापोरेशन होता है, सॉइल बॉडी से, सॉइल से एवापोरेशन होता है,
वाटर बॉडीज से एवेपोरेशन होता है और ट्रांसपिरेशन होता है वेजिटेटिव पार्ट से। तो एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के बाद ये गैसियस फॉर्म में एवेपोरेट होकर के ये आपका क्लाउड बना देता है। कंडेंसेशन के थ्रू फिर अगेन ये जब कंडेंसेशन होता है उसके थ्रू ये अगेन रेनफॉल के रूप में, ड्यू के रूप में, ओस के रूप में ये जमीन पर आता है। ठीक है, तो वो फिर रिसीव होता है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नेचर में चलती रहती है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, नाइट्रोजन अबाउट 78% बाय वेट, ये है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0033%। ठीक है, ये इसको आप थोड़ा सा नोट कर ले चाहे तो, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइड्रोस्फीयर क्लियर हो रहा है ये? यस सर। कहाँ गया ये हाइड्रोस्फीयर? मैक्सिमम जो है आपका वाटर 70% वाटर जो है समुद्र में है, और जो यूजलेस है एक तरीके से कह सकते हैं आप, क्योंकि उसको हम मतलब सेफ वाटर वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं हम उसको। मतलब पानी बहुत है, हाइड्रोस्फीयर पूरा भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी हमें वाटर की क्राइसिस बनी हुई है ना, ड्यू टू द ब्रैकिश वाटर, सलाइन वाटर, लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर। अब आइए सॉइल फॉर्मेशन पर आते हैं। मेन चीज इसमें जो है हमने ये इक्वेशन आप ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉइल फॉर्मेशन का पूरा अगर इसको आप ध्यान से रेडी तैयार कर लें तो यही आपका मेन जो है सॉइल फॉर्मेशन का कंप्लीट ये इक्वेशन है। होता क्या है, रॉक्स है। रॉक्स किससे बना है? इट इज मेड फ्रॉम द 2 और मोर मिनरल, और फर्स्ट फेज में इसकी वेदरिंग होती है। वेदरिंग के बाद क्या बनता है? पैरेंट मटेरियल, जिसको पैतृक पदार्थ आप कहते हैं। पैरेंट मटेरियल बनता है, और पैरेंट मटेरियल में फिर सेकंड फेज इसके बाद स्टार्ट हो जाता है। सेकंड फेज में फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ये दोनों चीजें स्टार्ट होती हैं। और फिर सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट, धीरे धीरे सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट होता है। पैरेंट मटेरियल के ऊपर जो फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्म, जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और उसमें सम सॉइल फार्मिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। इसमें कुछ प्रोसेस होती हैं जिसको हम पीरियोडिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें कुछ होती है फंडामेंटल प्रोसेस, कुछ होती है स्पेसिफिक प्रोसेस। आगे डिटेल में इन सबके बताएंगे। और स्लोली द सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट, जो हॉरिजॉन्टल लेयर है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, और सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट हो जाता है, और जो इसके बाद अल्टीमेटली सॉइल डेवलप हो जाती है। तो जो सॉइल जितनी ही पुरानी होगी उसमें जो होराइजन्स हैं वो उतना ही क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये किससे बना है? मिनरल से। और रॉक्स क्या है? रॉक, there are 3 type of rocks: igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. Igneous, sedimentary, metamorphic. Igneous का एग्जांपल है ग्रेनाइट, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है लाइमस्टोन, एंड मेटामॉर्फिक रॉक का है नीस या मार्बल। तो क्या होता है, इन दिस igneous rock is the oldest one and maximum percentage of the in the earth is the maximum percentage on the earth is igneous rock. So this igneous rock is oldest one and having 95% of the total rocks. कौन सा? igneous rock। ये सबसे ओल्ड है और ये सबसे ज्यादा मात्रा में नेचर में पाया जाता है, और सबसे पहले यही बनता है। इसके बाद क्या है? वेदरिंग। इसका वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है। इससे जो है सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं, जो ब्रेकडाउन के बाद जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं नदियों के द्वारा, समुद्र के द्वारा, उससे क्या बनता है? सेडिमेंट्री रॉक बनता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है, और फिर इसकी भी वेदरिंग और इरोजन होता है। और वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन के थ्रू फिर ये सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, उससे फिर सेडिमेंट्री रॉक बनता रहता है। और इसी से इन दोनों रॉक के, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक
को जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे हम करते हैं, जब इन पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है तो उसके द्वारा ये मेटामॉर्फिज्म के द्वारा मेटामॉर्फिक रॉक डेवलप हो जाता है। मींस फ्रॉम इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक मेटामॉर्फिक रॉक इज डेवलप्ड। ओके, तो एंड आफ्टर वेदरिंग एंड इरोजन अगेन दिस मेटामॉर्फिक रॉक इज converted into sediments after weathering and erosion, and ये नेचर में चलता रहता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक भी हीट और प्रेशर के मेटामॉर्फिज्म से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। फिर मेल्टिंग के थ्रू ये मैग्मा और लावा में बदल जाता है, और फिर कूलिंग और सेडिमेंटेशन के थ्रू इग्नियस रॉक बनता है। कहने का मतलब ये है, खत्म हो गया बे। वेदरिंग, अभी आपने जो इक्वेशन देखा वहां पर हमने जो बताया था, ये है रॉक। तो रॉक 3 हो गए, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक। और फर्स्ट फेज में इसका क्या हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है। वेदरिंग क्या है, इट इज द, आप इतना याद करो, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। जो रॉक है उनका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, फिजिकल या मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है। उसके बाद जो वेदरिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज द पैरेंट मटेरियल। मींस disintegration and decomposition of rocks and mineral and brought about by the physical agents। फिजिकल एजेंट्स में कौन से हैं, अब आप आगे पढ़ोगे, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल एजेंट के थ्रू फिजिकल वेदरिंग में आपका कौन कौन से हैं, रिलीफ है, टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, पैरेंट मटेरियल है ना, और क्लाइमेट है, रेनफॉल है, विंड है। तो इनके थ्रू इसका फिजिकल या मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, टूटता है, और टूटने के बाद ये कहीं डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ पैरेंट मटेरियल, और फिर वहां पर उसका केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, और धीरे धीरे वो किस फॉर्म में आता है, दे फॉर्म रिगोलिथ बनाते हैं, अनकंसोलिडेटेड रेजिड्यू ऑफ द वेदरिंग रॉक और अर्थ सरफेस और अबव द सॉलिड रॉक। सॉलिड रॉक के ऊपर आप देखते हैं, सॉलिड रॉक जो है उसके ऊपर रेगोलिथ होता है। आगे जब आप पढ़ेंगे वो सॉइल प्रोफाइल, A+B होराइजन को मिलाकर के सोलम बनता है, और A+B+C होराइजन को मिलाकर के रिगोलिथ बनता है। तो रिगोलिथ जो है वही जो पैरेंट मटेरियल, वेदरिंग के बाद जो पैरेंट मटेरियल बना है, और उस पैरेंट मटेरियल को वो अनकंसोलिडेटेड रेजिड्यू के रूप में वो कहीं डिपॉजिट होता है सॉलिड रॉक के ऊपर, अर्थ सरफेस पर, तो उसको कहते हैं रिगोलिथ। तो पैरेंट मटेरियल क्या है, पैरेंट मटेरियल इट इज द रिगोलिथ और द लीस्ट upper portion may be defined as the unconsolidated and more or less chemically weathered mineral material from which soil are developed। मींस जिस पर जो पैरेंट मटेरियल है, जो बेस है, रिगोलिथ है, उसी पर धीरे धीरे आपका सॉइल डेवलप होता चला जाता है। मींस सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट उसी पर होता चला जाता है। रॉक्स की वेदरिंग कैसे हो रही भाई, सेडिमेंट्री रॉक है और इग्नियस रॉक है, और इधर आपका जो है इससे जो है मैग्मा के कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से इग्नियस रॉक बना। अच्छा, इसमें एक चीज है, जब ज्वालामुखी से या ओरिजिन से सॉलिडिफिकेशन होता है, तो जो सॉइल सरफेस, जो सरफेस पे डिपॉजिट होता है, सॉलिडिफाई होता है, उसको आप कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक। चल चुपचाप, जो सरफेस डिपॉजिट होता है, जो आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा द डिपोजिशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज कम्स अंडर द एक्सट्रूसिव रॉक। इग्नियस रॉक में दो तरह के होते हैं, एक हो गया एक्सट्रूसिव जो बाहर की तरफ है, और दूसरा एक होता है कंसोलिडेशन, जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो इनसाइड द अर्थ, जो थोड़ा डीपर लेयर होते हैं, उनपे जो डिपोजिशन होता है उसको कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। इग्नियस दो तरह के हो गए, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो वेदरिंग के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, डिपोजिशन के थ्रू और
लिथिफिकेशन के थ्रू, इसके थ्रू वो डिपोजिशन हो रहा है सेडिमेंट्री रॉक का, और वो एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, और यही फिर जो है आगे चल करके ये यहाँ से वाटर फ्लो के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और फिर उनकी वेदरिंग भी हो जाती है, वाटर की वेदरिंग होगी, विंड से वेदरिंग होगी, और फिर सेडिमेंट्री रॉक के रूप में ये इकट्ठे हो जाते होते चले जाते हैं। और इन्हीं दोनों के इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पर जब मेटामॉर्फिज्म के थ्रू हाई प्रेशर और टेम्परेचर में जब होता है तो क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो दीज आर द सम एजेंट शोइंग द वेदरिंग ऑफ द रॉक। अब ये वेदरिंग तीन तरह का होता है। एक तो होता है फिजिकल वेदरिंग बाय द मींस, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसको बेटा आप लोग वो कर लो, इसके शॉट ले लो, क्योंकि इस पे आपको बनाना पड़ेगा नोट। ठीक है, हो गया। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या है, फिजिकल कंडेंसेशन ऑफ रॉक्स, एक तो हो गया फिजिकल कंडेंसेशन ऑफ रॉक्स, और ये कैसे हो रहा है, चेंजेस इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ वाटर, फ्रेगमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, एक्शन ऑफ फ्रीजिंग, अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग, एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, एक्शन ऑफ विंड एंड एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फेनोमेना। तो जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन रॉक का हो रहा है वो इन सब एजेंट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। ठीक है, ये सारे एजेंट हैं फिजिकल डिसइंटीग्रेशन जो है, फिजिकल वेदरिंग की ये सारे एजेंट हैं। ठीक, केमिकल डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हो रहा है, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जो है इन्हीं जो रॉक्स ब्रेकडाउन हुआ है उनका केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फिजिकल वेदरिंग हो गई, केमिकल डिकम्पोजिशन वेदरिंग का हो गया। और दूसरा अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट है वो है बायोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। सबसे बड़ा एजेंट कौन है, मैन और एनिमल। यही दो एजेंट ऐसे हैं कि जो वेदरिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा मैन और एनिमल हो गया, हायर प्लांट एंड देयर रूट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंतर्गत आते हैं। मैन और एनिमल सबसे ज्यादा जो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स के एजेंट हैं। आपको ये पता होगा जो बद्रीनाथ का हादसा था, केदारनाथ का हादसा था, या जो अक्सर पहाड़ों में लैंडस्लाइड होता है, अक्सर सुनते हैं न्यूज में आप कि वहां पर लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता बंद हो गया और बद्रीनाथ केदारनाथ पूरा ढक गया था, पता है आपको, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था सारा, उसका हादसा आपने सुना था? जी सर। और इसकी पिक्चर कौन सी थी, जो क्या नाम है, सुशांत सिंह की, केदारनाथ। उसका देखा कितना भयावह स्थिति थी उसमें। वो पिक्चराइजेशन एक समझिए कि बिल्कुल नेचुरल पिक्चराइजेशन है और हकीकत है वो कहानी। मींस जो केदारनाथ का हादसा हुआ वो क्यों हुआ, ड्यू टू मैन। उसके पीछे केवल आदमी है। क्यों भाई, जब पहाड़ों पर जब सड़क बनाने की बात आती है तो वहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट तो अपना टेंडर निकाल देती है, ठेकेदार को ठेका मिल गया और उस ठेकेदार के जो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पे लिखा रहता है यूज ऑफ द हैवी मशीनरी इज रिस्ट्रिक्टेड, लिखा रहता है उस पे। पहाड़ों पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस पे हैवी मशीनरी का यूज नहीं होना चाहिए। हैवी मशीनरी मतलब, और बहुत बड़े बड़े जो कॉस्ट बना दिया पानी की वजह से, इधर विंड की वजह से इस तरह का ब्रेकडाउन होता है। क्लाइमेट भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी देखिए रेनफॉल और विंड के थ्रू ये स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वेदरिंग के थ्रू, ये वेदरिंग के कारण स्ट्रक्चर है, इसका ब्रेकडाउन होता जा रहा है। केमिकल वेदरिंग में ये देखिए केमिकल चेंजेस के थ्रू होता रहता है, ये केमिकल की वजह से। एटमॉस्फेरिकल इलेक्ट्रिकल फेनोमेना की वजह से भी ब्रेकडाउन होता है। जब बिजली काफी तेजी से तड़कती है तो उसमें भी जो है इसका ब्रेकडाउन होता है रॉक्स का। ये केमिकल वेदरिंग का देखिए, ठीक है। तो ये है, तो अभी आप यहां तक ही रखिए इसको, आगे फिर और डिस्कस करेंगे। तो
ये चीजें केमिकल वेदरिंग, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग, इसका भी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, इसको आप नोट बना लीजिएगा। तो यहाँ तक रखिए अभी आप, ठीक है सर? यस सर। थैंक यू सर। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है उसको आप नोट कर लीजिएगा और क्लास में हमको बताइएगा। Yes, उस sir. चीज को हम वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है? Okay, इस फिगर sir, को okay, ले लिया sir. सभी ने? यस सर। यस सर। नोट कर लिया? यस सर। ओके, चलिए। हाँ, बोलो क्या करना है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।